हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीज टू सक्सेस। इलस्ट्रेशन 3 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 4। SMC is a public school having 5 buses each plying in different direction for the transport of its school students. In view of a larger number of students availing of the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. The buses are garaged in the school. The workload of the students has been so arranged that in the morning the first trip picks up senior students and the second trip, flying an hour later, picks up the junior students. Similarly, in the afternoon, the first trip takes the junior students and an hour later the second trip takes the senior students home. The distance traveled by each bus one way is 8 km. The school works 25 days in a month and remain closed for vacation in May, June and December. Bus fee, however, is payable by the students for all the 12 months in a year. The detail of expenses for a year are as under. Expenses की detail दी गई है. Driver salary 4500 per month per driver. Cleaner salary 3500 per month. Salary payable for all 12 months. One cleaner employed for all the 5 buses. ड्राइवर के केस में 5 बसेस हैं तो 5 ड्राइवर्स होंगे, ऑब्वियस सा बात है. क्लीनर्स के बारे में लिखा है 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस, मतलब क्लीनर एक ही है. License fee, taxes, etc. 8,600 per bus per annum. Insurance 10,000 per bus per annum. Repair and maintenance 35,000 per bus per annum. Purchase price of the bus 15 lakh each. Life of each bus 12 years. Scrap value of bus at the end of life 3 lakh. मीन्स परचेज प्राइस दी गई है, लाइफ दी गई है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट होगा डेप्रिसिएशन. डीजल कॉस्ट 45 पर लीटर, मतलब 1 लीटर का कॉस्ट 45 रुपीज़. ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, मतलब 1 लीटर में 4 किलोमीटर तक बस जा सकती है. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि 45 रुपीज़ में 4 किलोमीटर तक जा सकती है, क्योंकि 1 लीटर का कॉस्ट है 45 रुपीज़, तो 45 रुपीज़ में 4 किलोमीटर तक जा सकती है. सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज़ 50 स्टूडेंट्स. द सीटिंग कैपेसिटी इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर, मतलब ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 50 ही बैठते हैं. Students picked up and dropped within a range up to 4 km of distance from the school are charged half fare, and 50% of the students traveling in each trip are in this category. Ignore interest. Since the charges are to be based on average cost, you are required to prepare a statement showing the expenses of operating a single bus and the fleet of 5 buses. Number 2, work out the average cost per student per month in respect of student coming from a distance of up to 4 km from the school and a student coming from a distance beyond 4 km from the school. So please pause the video and read it twice, ताकि इसकी सारी relevant information आपको recall हो solution करते समय. Now I think you have read it twice. अब SMC समझते हैं इसको क्या लिखा है. SMC इज़ ए पब्लिक स्कूल हैविंग 5 बसेस. SMC एक पब्लिक स्कूल है जिसके पास 5 बसेस हैं, प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट. In view of a larger number of students availing of the bus service, the buses work 2 shifts daily, morning में और afternoon में. The buses are garaged in the school. Buses school में ही रहती हैं. The workload of the students has been so arranged that in the morning the first trip picks up the senior student and the second trip, flying an hour later, picks up the junior student. मतलब ये स्कूल और ये डेस्टिनेशन जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, ये स्कूल से बस जो है स्कूल में ही गैराज होती हैं, तो वहाँ से जाती हैं मॉर्निंग में और सीनियर स्टूडेंट को स्कूल लेके आती हैं. फिर 1 घंटे बाद जाती हैं और जूनियर स्टूडेंट्स को स्कूल लेके आती हैं. सेम चीज़ आफ्टरनून में रिपीट होता है. बस जाती है, सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स को छोड़ के वापस आती है स्कूल. फिर जाती है 1 घंटे बाद, सीनियर स्टूडेंट्स को छोड़ के वापस स्कूल में आके गैराज हो जाती हैं. और क्वेश्चन में दिया गया है द ईच बस कहाँ गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस वन वे इज़ 8 किलोमीटर. ओके, ये जो एक वे है इसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर है. तो कितने किलोमीटर एक दिन में चलती है एक बस? एक बार जाना फिर आना, फिर जूनियर स्टूडेंट्स को लेने जाना फिर लेके आना. 4 बार मॉर्निंग में सेम चीज़ रिपीट होती है आफ्टरनून में. ओके, तो 4 इंटू 2, 4 मॉर्निंग में 4 आफ्टरनून में सेम चीज़. और डिस्टेंस कितना, एक बार में 8 किलोमीटर, तो 8 8 जा 64 किलोमीटर एक दिन में एक बस ट्रैवल करती है. ओके,
Now the distance traveled by each bus one way is 8 किलोमीटर. The school works 25 days in a month. एक मंथ में 25 days स्कूल खुली रहती है. And remain closed for vacation in May, June and December. ये 3 months vacation के लिए बंद रहती है. बस फी however is payable by the student for all the 12 months in a year. बस फी जो है हर पूरे 12 महीने के लिए पे किया जाता है. द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ड्राइवर सैलरी फिक्स कॉस्ट होगी 4500 पर मंथ है. रिक्वायरमेंट एक बार देख ले पहले. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस. यहाँ पे क्लियरली बोल दिया स्टेटमेंट बनाना है. शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है जिसमें एक्सपेंसेस दिखाना है. शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस का भी एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस का भी. तो एक बार फॉर्मेट दिखा रहा हूँ. स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस. पार्टिकुलर्स पर बस पर एनम. एक बस का हो गया पर बस पर एनम. फ्लीट ऑफ 5 बसेस पर एनम. पर एनम क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर ए ईयर, एक साल का. एनुअली सॉल्व करना है. नाउ सी ड्राइवर सैलरी 4500 पर मंथ पर ड्राइवर. एक बस के लिए क्या हो जाएगा 4500 इंटू 12 54,000 और इसको इंटू 5 कर देंगे तो 5 बसेस का 2,70,000. क्लीनर्स सैलरी 3,500 पर मंथ. ये पांचों बसेस का है तो 3,500 इंटू 12 करेंगे तो 5 बसेस का निकलेगा 42,000 और इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तब एक बस का निकलेगा 8,400. ये भी फिक्स कॉस्ट है. लाइसेंस फी टैक्सेस एक्सेट्रा 8,600 पर बस पर एनम. तो एक बस का इंटू 12 करना है और 5 बसेस के लिए उसमें इंटू 5 कर देना है. इंश्योरेंस का 10,000 पर बस पर एनम सेम है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसको वेरिएबल में भी दिखा सकते हैं, फिक्स में भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर एनम दिया है मतलब हर साल इतना लगता है तो ये फिक्स कॉस्ट में दिखाना सही रहेगा. परचेज प्राइस ऑफ द बस 15 लाख, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख और लाइफ ऑफ द बस 12 ईयर. तो डेप्रीशिएशन निकलेगा जो कि फिक्स कॉस्ट होगा 15 लाख माइनस 3 लाख बाई 12 ईयर्स. तो 1 लाख एक बस का इंटू 5 कर दिए तो 5 बस का 5 लाख. रिपेयर एंड मेंटेनेंस. नाउ एक बाकी रह गया डीजल कॉस्ट. ये वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट है. डीजल कॉस्ट में क्या दिया गया था 45 रुपीज़ पर लीटर. 1 लीटर का 45 रुपीज़ लगता है और 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलता है मतलब 4 किलोमीटर चलने के लिए 45 रुपीज़ लगता है. सीधा सा बात है. अब नाउ सी कितने किलोमीटर एक बस चलता है. एक ईयर में कितने बस किलोमीटर चलता है. एनुअली सॉल्व करें तो ईयर का खर्चा निकालेंगे. ईयर में कितने किलोमीटर चलता है तो 5 बसेस हैं वो 8 किलोमीटर चलते हैं. टोटल ट्रिप्स कितनी है देखिए 1 2 3 4. मॉर्निंग में 4 और आफ्टरनून में 4. टोटल 8 ट्रिप्स हो गई. एक मंथ में 25 डेज. 1 ईयर में 9 मंथ्स ही चलती है क्योंकि 3 मंथ्स बंद रहती है मई जून एंड दिसंबर में. और 8 किलोमीटर्स एक वे का डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर्स. ये इंटू करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने किलोमीटर हुआ. ये तो 8 ट्रिप्स थी मतलब 8 किलोमीटर्स की 8 ट्रिप्स हुई इंटू इसीलिए 8 किलोमीटर्स. ये आ गया 72,000 किलोमीटर्स. ये 5 बसेस का है फॉर 5 बसेस क्योंकि इंटू हमने 5 पहले ही कर दिया था 5 बसेस का. तो 1 बस के लिए क्या होगा डिवाइड बाय 5 करना है बस. टोटल किलोमीटर 72,000 किलोमीटर 5 बस का है तो 1 बस का 14,400 किलोमीटर्स. अब डीजल कॉस्ट कैसे निकलेगा 4 किलोमीटर के लिए 45 रुपीज़ लग रहा है तो 14,400 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा रुपीज़ 1,62,000. यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं. तो डीजल कॉस्ट आ गया 1,62,000. 5 बस का 8,10,000. टोटल कॉस्ट निकल गया 18,90,000. कलेक्शंस 3,78,000 और 18,90,000. यहाँ पे हम पर बस पर स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट से 1-1 किलोमीटर के पैसे नहीं मांगे जाते, उनसे मंथली फ़ीस लिया जाता है. ओके इसीलिए जो रिक्वायरमेंट में भी था कि हमें प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस. तो ये सॉल्व हो गया. ये इजी था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Work out the average cost per student per month in respect of a student coming from a distance of up to 4 km from the school and the student coming from a distance beyond 4 km from the school. यहाँ तक complete हो गया. अब यहाँ देखते हैं. The seating capacity of each bus is 50 students.
50 स्टूडेंट्स है सीटिंग कैपेसिटी, और सीटिंग कैपेसिटी फुल्ली ऑक्यूपाइड होती है, इसका मतलब 50 स्टूडेंट्स ही होते हैं। नाउ स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको समझना होगा। स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन ए रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल्स are charged half fare and 50% of the students traveling in each trip are in this category। वीडियो पॉज करके एक बार प्लीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट कीजिए, खुद देखना, देखिए कि सही आता है कि नहीं। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। देखिए, मॉर्निंग में जो बस जाती है जूनियर सीनियर स्टूडेंट्स को लेके आती है, उसमें 50 स्टूडेंट्स होते हैं, ओके। फिर 1 घंटे बाद जाती है, जूनियर स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, उसमें भी 50 स्टूडेंट्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 50 जूनियर प्लस 50 सीनियर, 100 स्टूडेंट्स। आफ्टरनून में तो सेम चीज़ रिपीट होते हैं, वही स्टूडेंट्स वापस घर जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल तो 100 ही हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन ए रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल्स आर चार्ज्ड हाफ फेयर। मतलब जो 4 किलोमीटर, ये जो स्कूल है इसके 4 किलोमीटर के रेंज में जो स्टूडेंट्स होंगे वो उनसे जो फेयर चार्ज किया जाएगा वो हाफ होगा। मतलब अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ के 4 किलोमीटर के रेंज में हैं उनसे एक्स रुपीज़ चार्ज किया जाता है, तो जो 4 किलोमीटर के बियॉन्ड में रहते हैं, 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, उनसे 2x चार्ज किया जाएगा, ओके। वही इन्फॉर्मेशन लिखी है। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। मतलब हर ट्रिप में 50% स्टूडेंट होते हैं। जैसे ये सीनियर स्टूडेंट्स में भी 25, जो 50 नॉर्मली ऑक्यूपाइड होता है उसमें 25 4 किलोमीटर के अंदर से आते हैं, और 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आते हैं 25। सेम चीज़ जूनियर वाले में भी होती है। 25 जो ऐसे हैं जो विद इन 4 किलोमीटर से आते हैं, और 25 ऐसे हैं जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर से आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर से आते हैं वो कितने हो गए? 50। और स्टूडेंट्स जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर के रेंज से आगे आते हैं वो कितने हो गए? वो भी 50, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। तो हमें निकालना क्या है? स्टूडेंट्स कमिंग, हम लोग को एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट कितना फीस चार्ज किया जाए उनसे। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सो इसीलिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट हमने ऐड भी नहीं किया था यहाँ पे टोटल कॉस्ट में, और यहाँ पे कोई दी गई भी नहीं गई है। सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, सीधा सा मतलब ये है, जो एवरेज कॉस्ट निकला उसी से वही फीस चार्ज किया जाएगा। चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, जो कॉस्ट निकला वही चार्ज किया जाएगा स्टूडेंट से। तो कितना चार्ज किया जाएगा एक एक स्टूडेंट से वो निकालना है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द अमाउंट चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर, ठीक है, ₹x पर मंथ। एक मंथ में ₹x चार्ज किया जाएगा जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर से आते हैं। एंड द अमाउंट चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस विद इन 4 किलोमीटर इज ₹x/2, हाफ फेयर चार्ज किया जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स कवर्ड बाय बस 100 कैलकुलेट कर चुके हैं। आउट ऑफ दीज 100 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल फ्रॉम डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर। 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर से आते हैं। एंड रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर, ओके। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड, ये इक्वेशन फॉर्म हो सकता है। देखिए, हमें कितना पैसे रिकवर करने हैं स्टूडेंट से? 3,78,000 एक बस के लिए रिकवर करना है, ओके। तो एक बस के लिए रिकवर करने, एक बस में ही 50 स्टूडेंट्स होते हैं, मैं 5 बस का नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक बस का ही कैलकुलेशन था। एक बस जाती है, सीनियर स्टूडेंट्स को लेके आती है, फिर जाती है, फिर जूनियर स्टूडेंट्स को लेके आती है। ये एक बस का है, ऐसे ऐसे 5 बस हैं, ओके। तो एक बस का हमने कैलकुलेट किया कि 50 स्टूडेंट्स जो हैं विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर से आते हैं, और 50 स्टूडेंट्स बियॉन्ड 4 किलोमीटर के रेंज से आते हैं। नाउ सी, आउट ऑफ दीज 100 स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ लिए, 50 स्टूडेंट्स से ₹x पर मंथ चार्ज करना है, प्लस 50 स्टूडेंट से x/2 पर मंथ चार्ज करना है। और ये एनुअली इनटू 12 मंथ्स। एनुअल क्यों? और ये 12 मंथ से क्यों मल्टीप्लाई हो गया? यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर फीस इज पेएबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स, हमने पढ़ा था। और 3,78,000 कॉस्ट है जो कि हमें रिकवर करनी है। तो ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू 3,78,000 होना चाहिए। तो x सॉल्व करके आएगा 420।
तो स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर कितना होगा, हाफ फेयर, इसका हाफ 210, और स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर कितना होगा 420 पर मंथ, वही जो निकाला x, क्योंकि x हमने एज्यूम क्या किया था, x हमने एज्यूम किया था जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर से आते हैं, तो बियॉन्ड 4 किलोमीटर आ गया 420 x। सो थैंक यू।